Dear students, welcome to virtual classroom of Municipal Corporation of Greater Mumbai. I am Sri Kumar. The class is for 10th standard students. Subject is mathematics. Let me begin the class. Dear students, the topic is circle, a new chapter for you, and it's a very important chapter, having good weightage also, and it is after all about circle. ज्योमेट्री का डेफिनेशन में अर्थ आया था. Earth is a spherical body, or it has got its own curvature everywhere, and its fundamental shape is circular. When circles are made in 3 dimensions, it becomes a sphere. So my dear students, this is a very important chapter and little heavy chapter, having good weightage also. So we will go clearly, slowly. Concept clearance is very important, which I have done in the previous 2 chapters also. Examples are very typical, that one example will help you to at least solve 4 sums in the exercise. If you are not doing exercise, if you are not attempting the questions yourself, you will never become strong. Exercise is always to make you strong and perfect and expert. More questions you can get from guides and other websites nowadays. Even solutions you can get from website and guides. But explanation from the mouth of a teacher is away nowadays because of the COVID pandemic, where we are playing a very important role. So my dear students, videos are very important, not only mine, of your teachers or anybody's. Listen to that. Until you don't get the concept clear, you cannot go ahead. You have to study about circles passing through 1, 2 or 3 points, circles touching each other. Then you are having secant, tangent, arc of a circle, circle inscribed angle of a circle, intercepted arc, cyclic quadrilateral, secant, tangent, angle theorem, theorem of intersecting chords. So all these things are there in this chapter and very important topics. Let me slowly, without giving much pain to you, let me start. I'm telling you, your attention must be very clear to me so that you will get the correct required things. The chapter is circle. This is the concept of the circles which you have already studied, and these are congruent circles. Here it is G. Congruent circles. When circles will be congruent? When their radius, this is the radius, is congruent. सर्कल का पहचान रेडियस में है. सर्कल का पहचान रेडियस में है. रेडियस बदल गए तो सर्कल बदल गया. If this is 2 centimeter and if this is also 2 centimeter, circles are congruent. एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर रख सकते, तभी congruent होता है. These are concentric circle. The word center came. This is the center of the circle. Concentric means for the circle number 1 and circle number 2, this is the center. That is why they are concentric. Okay, here comes intersecting circle. Intersect means cross. Look at these 2 points, 2 different circles, 1 and 2. These are its respective centers, but these are the intersecting points. Circles are intersecting at 2 points here. So these are intersecting circles. So you first learned the language of circle, congruent circles, concentric circle, intersecting circle, and this is known to you. ये आपको मालूम है, नया कुछ नहीं है, but revision की part है. Now, little next step. It's an activity is given, you have to do it. Activity teacher के लिए नहीं है वापस. Activity आप करेंगे, आपको उसका मजा आएगा. But
as I am far away from you and this is a video, I would like to try to explain you how that activity and what enjoyment you are going to get. In the adjoining figure, तो मुझे आपको figure दिखाना पड़ेगा. This is the figure. In the adjoining figure, segment DE is a chord. Chord आपको मालूम है ना? Inside the circle, आप एक line segment डालेगा, उसको हमने chord नाम डाला था. With center C circle, this is a chord, and the chord name is DE. Segment DE is a chord of a circle with center C. CF is perpendicular to DE, that is why this marking here. If the diameter of the circle is 20 centimeter, diameter दिया है, क्या दिया है? Diameter. Diameter क्या है आपको मालूम है? Diameter is that lines, that chord which is passing through the center. सबसे बड़ा, एक नहीं कितना भी बना सकते हैं, but center से pass होना है. The diameter length is 20 centimeter. DE is 16 centimeter. ये DE का length 16 centimeter है. DE is from here till here. Now find CF. ये कितना है पूछा है, ठीक है? तो हम slowly serious matter में enter हो गया. Some properties will be made use everywhere and some theorems will be made use everywhere. Some proofs will be made use everywhere in geometry to get the answer or ask the question, get answer to the asked question. Now we are asked to recall and write theorems and properties which are useful to find solution of the above problem. ये आपका activity है, आपको जो अपने जो recall करने को बोले, जो पढ़ चुका है, थोड़ा क्लू भी दिया है. The perpendicular drawn from the center of a to a chord, that is one thing which you remember. This is the perpendicular drawn from the center to the chord. अभी आपको इधर complete करना है. अभी आपके लिए मैं लिखता हूँ bisect the chord. chord को bisect करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? By means to, sect means divide. This will be equal to this. That means we can say DF, the line segment DF will be equal to या congruent to FE. क्यों? The perpendicular drawn from the center to a chord bisect the chord. आपको पूछा क्या है? Find CF. Now, what more you can use to prove this is the above situation, to find out the length of CF. Length of CF find out करने के लिए आपको क्या क्या use कर सकते हैं? That is a question. So let me help you, because that's why I am here to help you. We are given diameter is equal to, किधर तो दिया था 20 सेंटीमीटर, तो हम उसका यूज करेंगे. ये तरफ पतला करना अच्छा होगा, ठीक. This is equal to 20 सेंटीमीटर टोटल. इसका मतलब अगर मैं इधर एक लाइन डालेगा और R रहेगा and it is equal to 10 centimeter. So we know that it is equal to 10 centimeter, which is radius. This is also 10 centimeter. This is 8 centimeter because we already said DF is. This is 8 centimeter. This is perpendicular means this is also perpendicular. तो हमको क्या क्या मालूम है? बहुत कुछ मालूम है. We can prove easily the triangle DFC is congruent to EFC because we know that this is common, this angle is 90 degree, this is 8 centimeter, correct? That also we know. I'm telling you, giving you the information. We have got this as 10 centimeter, this as 8 centimeter, this as 10 centimeter, 8 centimeter. We can calculate the length of it. क्या चाहिए, जो पूछा है सब कर सकते हैं. उसके लिए अभी सिंपली वी विल स्टिक टू, हम CF का लेंथ पूछा है तो फिर उसके बारे में बारी करेंगे. CF का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हमको 8 सेंटीमीटर इससे मिला, 8 सेंटीमीटर इससे मिला ना, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ. और ये 10 सेंटीमीटर कैसे मिला?
diameter is double of radius, उससे मिला। तो क्या मिला हमको, सी डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन से वो मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। सबसे इसी काम है, पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करेंगे। ये एक मेथड, बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने को। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इट टेल्स अस दैट सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दिस केस सी स्क्वायर, सॉरी सी एफ स्क्वायर, नॉट सी, इधर अपना मिटाने का चीज़, सी एफ स्क्वायर प्लस ये जो सी एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर, ठीक है। इसमें से सी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो सी डी हाइपोटेन्यूज सी डी स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर, और इसमें सी डी हमको मिला है 10 स्क्वायर और डी एफ हमको मिला है 8 स्क्वायर। सॉल्व, हमको सी एफ स्क्वायर मिल गया, 10 स्क्वायर इज 100, 8 स्क्वायर इज 64, and what is remaining, 64 plus 6 70 36, so CF square is equal to 36, CF is equal to 6। ये कैलकुलेट करने को नहीं बोला है आपको, आपको क्या बोला है, ये लिखो आप क्या क्या यूज करेंगे, ये तीनों भरने को बोला है एक्टिविटी में, ठीक है। चलो आपको जरा बता दिया, अच्छा है ना, यू विल फील गुड। आंसर मिले तो अच्छा लगता है, बट नॉट ए गुड प्रैक्टिस। ओके, ये मिटाना है मुझे। नेक्स्ट मिटाने के लिए सिस्टम क्या है, सिस्टम ऐसा है, उसको पूरा कवर अप करना पड़ता है। लेट मी रिमूव दिस, हाउ टू रिमूव दिस, ओके इसमें से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। पूरा ऐसा कवर अप करके एक डस्टबिन में डाल दिया। Okay, we will move ahead. What is given in here? Here is something again, a circle is given, a perpendicular bisector is drawn, and you are asked to find out something. Let me see what it is. Question copy किया है मैंने activity में वापस। In the adjoining figure, segment QR is a chord, वो देखने में मालूम पड़ा। For the center circle O, P is midpoint, बस, of the chord QR. If QR is 24, OP is equal to, and find the radius of the circle. वही दूसरे तरीके से पूछा। मैं अभी इसका ज़्यादा explanation में नहीं जाएंगे। Why? Because you already know it now. It is equal, this is perpendicular, it is given that midpoint, ये midpoint दे दिया है। Now QR is 24, QR क्या है, ये total है 24, and OP is 10, ये दिया गया है। What is पूछ, radius पूछा है। तो आपको ये 24 है तो ये 12 मिल गया, मिड पॉइंट दिया है तो मिड पॉइंट है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज परपेंडिकुलर। मिड पॉइंट है तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल्ड है, राइट एंगल्ड है तो अपना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। इसका भी साइज ओ क्यू फाइंड आउट करेंगे हम, करेक्ट। तो टेक्स्ट बुक क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, राइट द थ्योरम दैट आर यूजफुल। वापस वही काम है, थ्योरम, एक थ्योरम क्या क्या यूज करेंगे। वन इज दैट क्या है, द लाइन बाइसेक्टिंग, लाइन सेगमेंट लिखो, लाइन मत लिखो, लाइन सेगमेंट बाइसेक्टिंग द कोड ऑफ ए सर्कल ड्रॉन, किधर से ड्रॉ करना है, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से ड्रॉ किया अगर एक लाइन, कोड को बाइसेक्ट कर रहे हैं, विल बी परपेंडिकुलर। ये हमको एक थ्योरम है या अपना एक थ्योरम है, इसलिए हम इधर ये डाल दिया, नहीं तो ये डाल नहीं सकता था, वो मिड पॉइंट पे है बोलने से। सेकंड क्या है, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हमको ये जो क्वेश्चन में रेडियस पूछा है वो मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, थोड़ा फास्ट जाता हूँ नहीं तो पोर्शन खत्म नहीं होगा। ये क्या है, अगेन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक आई हैव कॉपीड। एक्टिविटी 3, एक्टिविटी से आपको मजबूत कर रहे हैं,
एक्टिविटी टीचर नहीं कर रहे, आपको करना है, मैं करके दे रहा हूँ, ताकि इसके बिना आपको तो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते. इन द adjoining figure, M is the center, okay, no problem, M is the center, and AB is the diameter, no problem, AB is the diameter. MS is perpendicular to AD and MT is perpendicular to AC, very good. Angle DAB is congruent to CAB, नया कुछ आया है. This one is congruent to this. अगर वो X है तो ये भी X है. Prove that chord AD and chord AC are congruent. इधर किधर है chord? यहाँ. This is the chord. Chord AD ये है, chord AC ये है. ये दोनों congruent है, प्रूव करना है. So theorem आप पढ़ा है छोटा क्लास में. That is that if you are drawing a perpendicular to the chord, it will bisect the chord. फिर आपने पढ़ा था if the chords are equal, the length of perpendicular will be equal, or if perpendicular length is equal, then chords are equal. ये theorem आप पढ़ा था. Chords are equidistant from the center. Chords which are equidistant from the center are equal in length. Congruent chords of a circle are equidistant from the center. इसका vice versa. Now you are asked to answer this question. Which of the following test of congruence of triangle will be useful? इसमें test of congruence में ये दो theorem आपके पास है, तो आप कौन सा use करेंगे? And आपको prove that AD is congruent to AC. AD congruent to AC प्रूव करने के पहले आपको मैं बताता हूँ सोचने की तरीका. आप है ना AS and AT congruent प्रूव करेंगे, और AS और AT equal प्रूव करना पड़ेगा. Correct? First thing is the chord which is equidistant from the center are equal in length. आपको बोलना पड़ेगा length of AD is equal to length of AC. आपको प्रूव करना है. सॉरी, लेंथ के लिए L आ गया, L नहीं आना होता. आपको क्या प्रूव करना है? सॉरी, ये प्रूव करना है, तो ये नहीं जा रहे, जाने दो. So what to do, I don't know. So I will write again, cancelling this. We have to prove this. ये लिखने जा रहा हूँ. AD and AC are congruent, ये आपको प्रूव करना है. AD AC congruent प्रूव करने के लिए आप पहले AD और AC इक्विडिस्टेंट होने से इक्वल है, ये प्रूव करना सिंपल मेथड है. ट्रायंगल प्रूव करने जाएगा, यू विल प्रूव दैट AS इज कॉन्ग्रुएंट टू AT. इसके लिए आपको ये इधर परपेंडिकुलर दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है. These two angles are congruent दिया गया है. दिस हो गया, ये हो गया एंगल, ए एंगल, ए एंगल, एंड दिस इज कॉमन साइड. करेक्ट? दोनों ट्रायंगल का कौन सा ट्रायंगल की बात करें? यू विल कंसिडर ASM and triangle ATM. ASM and ATM. उसमें S के जगह पे और T के जगह पे परपेंडिकुलर है, AM दोनों में है, कॉमन है, और हमको दिया गया है किधर दिस टू एंगल, एंगल A इज इक्वल. तो आपको AAS टेस्ट यूज करके यू कैन प्रूव दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर congruent. When you prove that these two triangles are congruent, ये अपना लास्ट पेज के इधर आके कैसे पढ़ा? सॉरी, ये निकालने दो मुझे, ध्यान नहीं दिया. ये आपको निकालना है मुझे, से remove it. Okay, so what we can do is we can prove these two triangles are congruent. When you prove these two triangles are congruent, AS and AT will become congruent. दोनों congruent हो जाएगा. And you will say that AD is congruent to AC because ये जो AS and AT का डबल है वो, because we are having perpendicular drawn here.
अंडरस्टूड। तो अब ज्योमेट्री में हमको रिवर्स सोचना है, हमको एडी एसी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो पहले हम एडी का हाफ और एसी का हाफ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। एडी का हाफ और एसी का हाफ, हाउ विल वी मेक शो दैट इट इज कॉन्ग्रुएंट? बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ASM and ATM. We can prove that AS and AT is congruent, so that we will be using the convenient test from here. This will be used and we will prove it. Once it is proved, लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट क्या लिखेंगे? व्हाट इज गिवन, देन व्हाट यू विल राइट, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उसके लिए जो चाहिए वो लिखें, देन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, देन ASAT कॉन्ग्रुएंट, व्हेन ASAT कॉन्ग्रुएंट, डबल ऑफ AS एंड डबल ऑफ AT विल बी कॉन्ग्रुएंट, एंड डबल ऑफ AS एंड AT इज नथिंग बट जो पूछा गया कोड है, दैट इज द टेक्निक। चलो आगे जाएंगे। ये बोर्ड मिटाना इसमें भी है, स्कूल के क्लासरूम में भी है, डिजिटल में भी मिटाना पड़ता है। गुड, साफ तो हो जाता है, नो प्रॉब्लम। चलो आगे क्या दिया है देखेंगे। सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 और 3 पॉइंट्स, वापस सर्कल में आ गया, बीच में हम ट्रायंगल के पीछे गया था, कोड के पीछे आएगा। सर्कल पासिंग थ्रू 1 और 2 और 3 पॉइंट्स में क्या है? सर्कल पासिंग थ्रू 1 पॉइंट है, एक पॉइंट से बहुत सारे सर्कल जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत सारे सर्कल जा रहे हैं। थोड़ा कलर चेंज किए तो आपको अच्छा दिखेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक। सर्कल पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, देन व्हाट इज दिस? दिस इज अबाउट सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स सब आ रहे हैं, हमको परेशान करने के लिए लगता है। Is a adjoining figure, how many circle can pass through A and B? A and B से कितना सर्कल पास हो जाएंगे, ठीक है। How many circle contain all 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट से कितना सर्कल पास हो जाएंगे? तो A एंड B से कितना पास हो जाएंगे, ABC से कितना पास हो जाएंगे? तो we can try that, no problem. All these answers in geometry will get by trial and error. Trial and error. Activity दिया है, draw AB and draw perpendicular bisector of the segment and take the point P on the line L as center, PA as radius and draw circle. हाँ, A and B से कितना सर्कल होगा वो करने का तरीका है ये। फर्स्ट यू विल ड्रॉ AB एंड देन यू विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर आप देखेंगे कितना ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मुझे भी इंटरेस्ट है मालूम होने के लिए कितना ड्रॉ कर सकते हैं, मुझे भी इंटरेस्ट है, आपको भी इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट आपको समझाने में इंटरेस्ट है, ठीक है। मैं मैजिक बॉक्स में जाके क्या क्या लेना पड़ेगा मुझे, अभी पहले तो मुझे AB ड्रॉ करना है, तो आई नीड ए स्केल। फर्स्ट टिंग एक स्केल आ गया, स्केल को मैं इधर के सेंटर पे रखता हूँ। फिर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए ये कॉम्पस चाहिए, दोनों निकाला, बॉक्स बंद किया, कॉम्पस को साइड में रखा। इससे मुझे एक AB बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल AB बनाएगा तो मालूम पड़ेगा कि ओके AB बना रहा हूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो एक पेन से, ओ सॉरी, कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। AB बना दिया, पहले AB बनाने को बोला था ना, तो AB बना दिया, आई थिंक वही बताया था। AB बनाया। नाउ यू हैव टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू इट। तो ये भी थोड़ा छोटा बनाना अच्छा था, चलो जाने दो, बना दिया, ठीक है। स्क्रीन साइज भी देखना पड़ता है ना, पहले पेपर का साइज देखना है, अभी स्क्रीन साइज बैठेगा क्या? हाँ, हो जाएगा। मोर देन हाफ दिस शुड बी, आई थिंक यू रिमेंबर हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, बिफोर दैट लेट मी नेम दिस एज AB, ठीक है। AB आ गया। नाउ ड्राइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको मैं उठा के इधर रखता हूँ, काम में आएगा, ठीक है।
and I would like to change the color of the pencil so that it will be seen distinct. ठीक, बाइसेक्टर है ना, तो थोड़ा संभाल के। ठीक, इधर एक ड्राइंग किया, इधर भी एक बाइसेक्टर का आर्क बना के रखा। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, काम में आएगा। तो चाहे दूसरे एंड पे लेके गया, रिमूव दिस, ब्रिंग द कॉम्पस, देखा बड़ा करना मांगता था मैं। ठीक है, इसको इधर बढ़ा दिया, इसको भी इधर बढ़ा दिया। सो आई मेड इट लिटिल रॉन्ग, रॉन्ग नहीं है, मेरा जजमेंट रॉन्ग गया। सो आई विल टेक दिस हियर एंड मेक द जजमेंट राइट नाउ। ठीक, ठीक, इसको क्रॉस कर देंगे। उसके बाद इसको नीचे लेके आके, ये तो है, इसका भी ज़रा मार्क कर देंगे। इसको इधर लेके आके टर्न दिस साइड, check this side, and complete the drawing. You got it? Perpendicular थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया क्योंकि फर्स्ट आर्क थोड़ा कॉमन सेंस कम हो गया उस समय मुझे। चलेगा, ड्रॉ द परपेंडिकुलर। मुझे लगता है मेरा काम थोड़ा तकलीफ में आएगा क्योंकि इतना बड़ा नहीं बनाना था। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, समझ लो। नाउ टू ड्रॉ ए सर्कल यूजिंग दिस एज सेंटर, मैं ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे कि देखता हूँ सर्कल कितना अच्छा दिखता है। ठीक है, एक सर्कल तो बन गया। नाउ व्हाट योर टेक्स्ट बुक इज सेइंग, यू मार्क ए पॉइंट हियर समवेयर, एक पॉइंट डालने का इसमें और कॉम्बस उधर लेके आने का। समय वो कॉम्बस लेके आने के बाद कॉम्बस एडजस्ट इट इन सच ए वे दैट इट टचेस ए एंड बी। फिर उधर एक सर्कल बनाओ बोल रहा है। ठीक है, एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, एक सर्कल बना दिया। सो टू सर्कल आई कुड मेक passing through points A and B. That was our अपना activity वही है ना। Take another point here on the circle, इधर के इधर ऊपर। Take the compass, आपका एक्टिविटी है, मैं कर रहा हूँ एंड मुझे भी अच्छा लग रहा है। Activities are always good, right? यार compass भी ऐसा है ना। Okay, now I have to adjust the compass for A and B, correct? थोड़ा कलर चेंज भी आपके लिए और मेरे लिए अच्छा है, मज़ा आएगा। ठीक है, कलर चेंज करके दूसरा सर्कल बना दिया। ये भी से जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? और बना सकता है क्या? तो मैं दूसरा एक पॉइंट पे रखता हूँ ऑन द परपेंडिकुलर। अभी परपेंडिकुलर का काम समझ में आया। परपेंडिकुलर में रखेगा, किधर भी रखो, यू विल गेट द सर्कल पासिंग थ्रू ए बी। थोड़ा दूर रख के देखता हूँ कैसा होता है। स्क्रीन पे जगह चाहिए। ठीक है, देखता हूँ, नहीं हुए तो भी आपके लिए आधा दिखे तो भी चलेगा, समझ में आया ना। अभी यू कैन ड्रॉ इनफ नंबर ऑफ सर्कल फ्रॉम the perpendicular road. That means our conclusion क्या है? Through two points, you can draw innumerable number of circles. Correct? You can draw any number of circles through 2 points A and B. Right? And the previous case, you found that what you found was here through 1 point
कितना भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ 1 पॉइंट पे नहीं 2 पॉइंट से भी इनफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. बट इफ इट इज 3 पॉइंट, 2 पॉइंट से 1 है, 3 पॉइंट है तो बात ऐसा नहीं है, बात अलग हो जाएगा. व्हाट इज दैट? लेट मी सी. आई एम गोइंग टू रिमूव दिस. रिमूव तो करना पड़ेगा तभी तो बोर्ड क्लियर हो जाएगा, राइट? आई एम रिमूविंग दिस. Take the whole thing and put it in the dustbin. Okay, now 3 non-collinear points लेके circle बनाना है. 3 non-collinear points. So I have to take 1 point here, 1 point here, 1 point here. ऐसा सर्कल बनाना मुश्किल होगा, बट एक 3 पॉइंट को जोड़ के 1 सर्कल बना सकते. ये 3 पॉइंट्स को छोड़ के. It is not possible to draw more than 1. And if these 3 points are at the corner of an equilateral triangle, तब भी होएगा easily. आपको ड्राइंग करके दिखाना है तो they should be in such a way that 3 points are on the circle. Otherwise it should be a circumcircle. वो सब आपको आ रहा है. सो एट प्रेजेंट मैं वो सब बना के टाइम वेस्ट नहीं करना. वेस्ट नहीं, आपको तो सीखना ही है. बट इन सर्कल सर्कम सर्कल का टॉपिक मैं ले लूँगा, तभी मैं आपको बताऊँगा. इट विल बी क्लियर दैट इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ 1 more सर्कल? नो, नॉट पॉसिबल. यू कैन ड्रॉ 1 सर्कल थ्रू 3 डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ये मैं वर्बली बता के आगे जा रहा हूँ, बिकॉज इसके बारे में आपको कंस्ट्रक्शन है, और नहीं है तो भी मैं आपको दिखाने वाला है कंस्ट्रक्शन के इन सर्कल सर्कल सर्कल. दैट इज द बेस्ट वे ऑफ क्लियरिंग इट. बट ओनली 1 सर्कल इज पॉसिबल इन सच सिचुएशन. उसका रीजन ऐसा है. सो इन्फिनिट सर्कल कैन पास थ्रू 1 पॉइंट. Infinite circle can pass through 1 point. Infinite circle can pass through 2 points. And और क्या है? There is unique circle, only a circle can pass through, what we say, 3 non-collinear points. No circle can pass through 3 collinear points. Collinear points क्या है? हाँ, वो बोलना भूल गया. अगर हम एक लाइन में 3 पॉइंट डाल दिया, इधर एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट और इधर एक पॉइंट, और हमको सर्कल बनाना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल. अगर इधर एक सर्कल डाल दिया, इधर एक सर्कल डाल दिया, इधर एक सर्कल डाल दिया, वी कैन ड्रॉ ए सर्कल. And if there are 2 points here, and you can pass infinite circle. And if it is only 1 point, you can pass infinite circle. 1 and 2 में infinite, 3 में a circle, और 3 collinear में, इधर क्या है? नॉन collinear है. ये collinear मतलब एक ही लाइन में, एक ही लाइन में तो नो सर्कल पॉसिबल. ठीक है. सो दैट इज 1 पार्ट ऑफ द वीडियो. हम आगे जाएंगे जिससे हमको एक कंसेप्ट और क्लियर कर देंगे. बिफोर दैट लेट मी क्लियर द स्क्रीन. स्क्रीन क्लियर हो गया. नाउ व्हाट इज इन द स्क्रीन वी विल सी. इट इज गिवन दैट secant tangent क्या है समझने को. हियर इज ए सर्कल एंड ए लाइन. यू कैन सी ए सर्कल and a line. There is a circle, line, circle, line, circle, line. But here the line is far away. Here it is touching the circle. Here it is intersecting the circle. ये तीनों को, इसको तो कुछ बोलना नहीं हो. The line है, circle है. This type of line segment are called tangent to the circle. This kind of, where it is intersecting, we call it as secant to the circle. Tangent and secant, by being जैसा है ना, tangent and secant. Tangent will touch the circle, secant will intersect the circle. Both are lines. Okay. Now coming to the next concept.
इसमें हमको टेंजेंट के बारे में थोड़ा ये चैप्टर में ज़्यादा पढ़ना है, समझना है। और टेंजेंट कैसे बनता है? टेंजेंट बनने के लिए स्टेप्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए बी को ड्रॉ किया, ए बी ड्रॉ किया तो उसका फर्स्ट स्टेज देखो, ए बी इधर है, दिस इज ए बी ओनली, फर्स्ट स्टेज इधर है, दिस इज फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज में देखो हियर दीज ऑल आर लाइक सीकेंट। इधर आया, ये टेंजेंट बन गया। टेंजेंट का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये डायग्राम है। टेंजेंट तब है जब, सेकेंड पार्ट, यू लुक एट दिस perpendicular. Tangent will be perpendicular. If you draw a tangent here, मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, हंसने का नहीं। And if you connect this to here, again हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, हंसने का नहीं। This is 90 degree. Always draw any tangent. It will be 90 degree with respect to the center. A very important information and it is always true. Understood? So अभी मैं बोर्ड मिटा के आगे जाता हूँ तो कंफ्यूजन ना हो। चलो, नाउ दैट इज अ थियरम रिलेटेड टू दिस tangent segment theorem. The theorem says that tangent segment, if drawn, one second, tangent segment drawn from an external point to a circle are congruent. What is tangent segment theorem? Suppose that you are drawing a tangent. मुझे वापस एक बार कॉम्बस का काम आ गया। Here is a compass. एक छोटा सा सर्कल बनाता हूँ फटाफट। वीडियो का लेंथ ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे? आप वीडियो बंद करेंगे, चाय पिएंगे, पानी पिएंगे, वापस वीडियो चालू करेंगे। पहले के जैसा नहीं, आपका टीचर बंद करेगा तो ही बंद होता है। अभी आप बंद करेंगे वीडियो, थोड़ा ग्लास चाय पिएंगे, रिफ़्रेश हो जाएंगे, या पानी पिएंगे, रिफ़्रेश हो जाएंगे, नहीं तो मिनट नोट करके रखेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। चलो एक दो टेंजेंट बनाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। ओके, ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट में एक पॉइंट से बनाने जा रहा हूँ। एक पॉइंट ही पहले डाल देता हूँ, दैट विल बी गुड। एक पॉइंट डाल दिया, ये पॉइंट से टेंजेंट बनाने जा रहा हूँ। स्केल भी ज़रा स्पेशल डिजिटल स्केल है, इधर खींचे उधर जाएगा, ठीक है। नाउ आई विल ड्रॉ ए टेंजेंट। आई कैन ड्रॉ ए टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। आई एम ड्रॉइंग अनदर टेंजेंट नाउ, लेकिन फ्रॉम द सेम पॉइंट। थोड़ा कुछ प्रैक्टिस करेगा तो आपका जैसा स्केल हो जाएगा ये भी। ओके, थोड़ा एडजस्टमेंट बाकी। Now I am drawing the second tangent from the same point. Point ये इधर है मेरा, which can be marked as D as it is given in the diagram. P and Q. Let the center be A. ठीक है। The speciality is that they are congruent. What are congruent here? If you measure the length of this tangent segment, they are congruent. जरा देखता हूँ, अभी अपने पास स्केल है तो क्या टेंशन है। ये है ऑलमोस्ट 7 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा घुमा के इसको भी मेजर करता हूँ। चलो इधर रख के देखेगा तो वो भी मालूम पड़ेगा, 7 सेंटीमीटर वाला। यस, वेरी ब्यूटीफुल, दोनों 7 में बैठ गया। सो दिस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो थियरम इज राइट। लेकिन थियरम ऐसे ड्रॉ करके प्रूव करने का आपका टेक्स्ट बुक में बताया नहीं है। थियरम हमेशा प्रूफ ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना है with statements. With statements we have to prove the theorem always. Remember that theorem cannot be proved in the paper through activity. Activity maths lab में होएगा। Theorem is a proof
होता नहीं, but I told you बस. Now in the adjoining figure, 1 second, jump तो नहीं किया, नहीं किया. In the adjoining figure, its center D touches the circle angle ACB at A and B. Okay, very good. D circle with D touches the sides of angle ACB at A and B. Angle को touch. If ACB is 52 degree, find the measure of ADB. Oh, अच्छा है. तो आपको डायरेक्ट हिट है इधर. ये तो 90 डिग्री होगा भाई, बिकॉज इट इज गिवन दैट ये टच कर रहे, तो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है. टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 52 कौन सा है, ACB है, 52 है. तो ये क्वाड्रिलेटरल है ना, ACBD क्वाड्रिलेटरल है. टोटल 360 होना मांगता है. अब इधर 90 52 गया, तो 90 + 90 + 52 इज इक्वल टू 2. 9 + 9 18 + 5 23 232. अभी 360 से 232 हम माइनस करेंगे, right? This became 60 now and 100. Okay, so here this angle would be 128. That is what is asked. लेकिन फिर ऐसा लिखे रखेगा ज्योमेट्री का पेपर में? No. You will say that why this is 90 because CA is a tangent, why this is 90, CB is a tangent, why this is 52 because it is given, then why it is 360 because it is a quadrilateral. So you will start with A, C, B, D is a quadrilateral करके आपको शुरू कर सकते हैं. मुझे देखने दो, मैं आपका टेक्स्ट बुक इधर कॉपी किया तो वही फॉलो करेंगे. There are more than one way of writing it. Okay, so I will pick up this one clearly now. उसको फ्री कर देंगे, इतना फ्री कर देंगे, ठीक है, इतना फ्री कर दिया. ओके, देखो ABC इन सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? क्वाड्रिलेटरल मैंने नाम दिया है ACBD. ठीक है, इसमें ACB है, CAD है, CBD है, ADB है. 360 होना मांगता है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है. 52 है, 90 है, 90 है. टेंजेंट थियरम से आया, देखो थियरम डाल दिया, बस खत्म हो गया. तो 232 128, नो प्रॉब्लम. दिस वे यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम. चलो आगे जरा जाता हूँ. आगे जाने के पहले बोर्ड भी साफ करना है. बोर्ड मिटा दिया. This is again about using tangent theorem. We are trying to prove point O is the center of a circle. Point O is center of a circle. और क्या दिया है? लाइन A and लाइन B are parallel. ये दोनों पैरेलल है. एंड टेंजेंट भी है, इधर टच हुआ है. P Q at P and Q में टच हुआ है. प्रूव दैट PQ is a diameter of the circle. ये जो है ना, ये डायमीटर है, प्रूव करना है. ये डायमीटर है, प्रूव करना है. तो मैं बोला है ना, आपको सोचना है मैं कैसे प्रूव करूं. डायमीटर है प्रूव करने के लिए पहले तो एक लाइन में आना मांगता है, और इधर स्ट्रेट लाइन में आना मांगता है. दैट इज वन कंडीशन रिक्वायर्ड. अगर हमको इधर और इधर 90 डिग्री प्रूव करने हुआ तो ये स्ट्रेट लाइन में आया, सेंटर से गया, देन वी कैन प्रूव इट एज डायमीटर. सो इसमें हमको क्या हेल्प होने वाला है? एज दिस इज गिवन टेंजेंट, ये दोनों 90 डिग्री है. ये हमको अभी टेंजेंट थ्योरम पढ़ने से मालूम पड़ा. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर. जब लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ड्रॉ करेंगे एंड इन सच ए वे दैट इधर भी 90 डिग्री मेंटेन करेंगे.
सो व्हाट हैपन, इफ दिस इज 90 डिग्री, ये पैरेलल ड्राइंग करेंगे तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. सो वी कैन से दैट, what we can say that POQ कोलिनियर है, एक ही लाइन में आ रहा है और सेंटर से जा रहे हैं, इसलिए डायमीटर है. देखो PQ इज डायमीटर, क्यों? POQ इज कोलिनियर. POQ कोलिनियर कैसे मालूम पड़ा? इधर 90 प्लस 90 है, इधर 90. ये आइडिया स्ट्राइक होने की वजह से हम इधर से इधर तक लिखा. ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करने का आइडिया स्ट्राइक होता है और ऊपर से लिखता है. टैंजेंट थ्योरम और इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस का यूज करके हमको बोल सकते हैं ये दोनों 90 है. फिर उसका जो कंस्ट्रक्शन किया वो भी पैरेलल है तो वो भी 90 है. तो ऑल दिस आर 90 होने की वजह से वी कैन से दैट इट इज प्रूव्ड. ये थ्योरम का एप्लीकेशन है, टैंजेंट थ्योरम का. ओके, लेट अस मूव अहेड. बस बोर्ड में ठाना है. तो टैंजेंट के बारे में आइडिया देके वीडियो ख़त्म करता हूँ, ऑलमोस्ट फिनिश कर रहा हूँ. वीडियो थोड़ा लंबा है तो आपको बोर लगता है तो बीच में स्टॉप कर सकते हैं. ये मोटरसाइकिल रन ऑन ए वेट रोड, कभी कभी ना अपना गाड़ी कभी रास्ते में चलते हैं, अगर कीचड़ है तो ऐसा कीचड़ उड़ता है ना, इट स्प्रे लाइक दिस, छाप छाप मट्टी उड़ता है. ये सब टैंजेंशियली उड़ता है. कैसे? टैंजेंट है, ये सब टैंजेंट है. अपना जो क्या बोलता है, दिवाली के टाइम पे, हाँ ये चक्करी, ये भी टैंजेंशियली उसका ये फायर आता है, राइट. तो टैंजेंट तो है हमारे त्योहार में भी. तो टैंजेंट को जरा प्यार करो. टैंजेंट कैसे अभी मालूम पड़ा, टैंजेंट का प्रूफ भी मालूम पड़ा, टैंजेंट का एप्लीकेशन भी मालूम पड़ा. नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा मालूम पड़ेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास. समझ के लेना है बहुत. सर्कल चैप्टर लंबा है, सर्कल चैप्टर में बहुत सारे प्रॉपर्टी है. ओनली नाउ यू अंडरस्टूड ए टैंजेंट टचेस द सर्कल, वेयर इट टचेस इट विल बी परपेंडिकुलर, लाइन ड्रॉन विल बी परपेंडिकुलर टू द सेंटर. इतना ही आपको याद करना है, इतना सब सुनने के बाद. ओके, थैंक यू. Now click on the subscription button below to subscribe the channel, then the bell button to get the notifications of the new videos. Thank you.